Hello, my dear students. Welcome to Success Mantra. So, I know all of you are a bit nervous after your CUET PG COQP 11 examination. I could hear so many reviews from so many students. I'm very sure all of you have rocked into it. And I know that after getting your reviews, after getting the feedbacks of so many students, I have actually got to know about few points, how the exam was, what was the difficulty level of the examination, how the examination went, how students were successful enough in dealing with the level of the examination, which section was the toughest, which section was the easiest, which section was away from the expectation, and which section had very less questions from. All these questions have been answered with all these feedback points which I have received from my dear students. So on the basis of the review which I have received from my students, on the basis of the analysis which I have got from my students, I am here with a very general analysis for all of you. Of course, we are going to keep this analysis very short because yet we are not having this exam right now in our hands. So until and unless we are having the question paper in our hands, we cannot be very clear with the analysis, but at least the short analysis we can cast, because on the basis of that only we could judge that how can we solve the curiosity of the students, how can we solve the questions जो बहुत सारे students लेकर के आ रहे हैं. They are having multiple questions right now in their minds, and I am here to solve all those questions. So let us start with it. Let us start with very basic points. So आप लोगों का जो DULLB examination था, which was your CUET PG examination, COQP 11. So that examination has really went well yesterday on 25th of the March. Now, as per the analysis which I have received, the paper was not tough, right? It was moderate of level, and it was having questions from each and every part, which has actually given a very clear idea to the students कि कोई भी subject हमें ignore नहीं करना है, ठीक है? कोई भी subject ऐसा नहीं है जिसे आप ignore कर सकते हो. हर एक subject को आपको equal importance देनी ही होगी. अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि अराउंड लमसम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, किस सब्जेक्ट को कितना डिफिकल्टी लेवल के थ्रू हमने देखा, और किस सब्जेक्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑल दैट. आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट, राइट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने को और देखने को मिली इस एग्ज़ाम के बाद, दैट हमेशा हर सब्जेक्ट जैसा हम सोच के जाते हैं वैसा ही आए ज़रूरी नहीं होता. दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, दीज आर filled with surprises. So for sure, why are they competitive? Because they are going to give you multiple surprises. They are unpredictable. That is the only reason कि हम इन एग्जाम्स को competitive examinations बोलते हैं. आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चंस आए, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ थे जो डिफ़िकल्ट थे या ईजी थे, राइट. एंड लेट अस स्टार्ट विद इट. सो first of all, we are having this analysis available with us on the basis of the feedback which we have received from multiple students. So first of all, yes, of course, English section में as expected RC बहुत ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है. सो RC सेक्शन वॉज नॉट देयर. इट वॉज वेरी ईजी टू मॉडरेट. मोस्टली क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना है कि जैसा एक्सपेक्टेड था सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, नहीं आए, ठीक है. बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, ठीक है. आइडियम्स वर देयर एंड सेंटेंस करेक्शन वॉज देयर. तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के पास सेंटेंस करेक्शन के ऊपर थे, ठीक है. और इसी बेसिस पर हम ये एक अपने पास एक एनालिसिस लेकर के चल सकते हैं, एक ओवरव्यू लेकर के चल सकते हैं दैट अबाउट 13 to 14 क्वेश्चंस वर देयर, ठीक है. दिस इज़ द बेसिक रिव्यू ऑफ इंग्लिश सेक्शन. जनरल नॉलेज, अब देखो जनरल नॉलेज के साथ ही हम सीए को कंबाइन करके देख लेते हैं, करंट अफेयर्स को. तो एक चीज़ हम लोगों को समझनी है कि कोई एक ही लेवल इंक्रीज़ होकर के आ सकता है, या तो जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होकर के आ सकता है या तो करंट अफेयर्स. जब हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स वॉज ऑन फायर. इस बार जनरल नॉलेज हैज़ टेकन दैट प्लेस, बिकॉज या तो वही बात है, या तो स्टैटिक ही आपके पास कंप्लीट होकर के आएगा या फिर आपके पास करंट आएगा. तो इस बार करंट के ऊपर उन लोगों ने बिल्कुल हल्का हाथ रखा है. करंट बिल्कुल भी हमारे पास ना के बराबर था, वेयर एज स्टैटिक वॉज मोर आस्क्ड.
स्टैटिक में हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो 11 to 12 क्वेश्चंस हैं, राइट, एंड बट दे वर ईजी टू मॉडरेट, तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए, द क्वेश्चंस वर वेरी ईजी, सो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड दैट येस एटलीस्ट दिस वॉज द लेवल, तो हमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी पार्ट से प्रॉब्लम क्वेश्चंस है हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट येस स्टूडेंट्स को एक दुख ज़रूर है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए, बिकॉज हमेशा ही हर एग्जाम में करंट अफेयर्स की एक अलग हाइप होती है, और करंट अफेयर्स को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत सीरियस भी होते हैं ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर लाइक वेरी मच इनटू द मंथली मैगजीन ऑफ सक्सेस मंत्रा, द वीकली मैगजीन, ईच एंड एवरी कंपेंडियम स्टूडेंट्स वर गेटिंग थ्रू इट सो कीनली, बिकॉज उन्हें था कि मैम करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, एंड नाउ ऑल ऑफ सडन दे कुड सी कि करंट अफेयर्स से बहुत मिनिमल क्वेश्चन थे, सो दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी शॉकिंग पार्ट। बट येस ऑल थ्रू दैट आई गॉट टू नो कि हमने अभी रिसेंटली जो मैराथन्स किए थे, हमने जो रिसेंटली लाइव सेशंस किए थे फॉर द रैपिड फायर क्वेश्चन रिविजन फॉर द स्टूडेंट्स, तो हमें स्टूडेंट्स से ये पता चला कि वहाँ से बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, विच इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर सक्सेस मंत्रा, एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर ट्रस्ट इन टू अस। सो अगेन ऑफ कोर्स वील ऑलवेज बी हेयर फॉर ऑल ऑफ यू गिविंग सो मेनी मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली, ताकि आप लोगों का और एग्जामिनेशंस में भी ऐसे ही बेनिफिट हो सकें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर बेसिक्स, देखो कंप्यूटर को लेकर के सिर्फ स्टूडेंट्स को ही डर नहीं था, मुझे भी डर था, मुझे भी ऐसा था कि पता नहीं स्टूडेंट्स कंप्यूटर में कैसे कर पाएंगे, बिकॉज एरिया इतना वास्ट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, वो सारी चीज़ें थी। बट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आए कंप्यूटर से, बच्चे बहुत खुश थे कंप्यूटर को लेकर के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए एज यूजुअल। कंप्यूटर से जैसे हमें पता रहता है हमेशा ही 4-5 क्वेश्चन का ही एक आइडिया होता है, 4-5 क्वेश्चन ही आए एंड बहुत बहुत मॉडरेट, सो दे वर वेरी वेरी अप टू द मार्क एंड स्टूडेंट्स वर हैप्पी, दे वर हैप्पी इनफ कि हमें मतलब इतना ईजी मिला कंप्यूटर सेक्शन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ आया, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सो स्टूडेंट्स वर नॉट हैप्पी विद द जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद इट, क्योंकि उनका कहना ये है कि मैम मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट आई थी। सो सम आर सेइंग दैट मैथ्स ईजी थी मैम, हो गई बहुत आराम से, सम आर सेइंग मैम मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट थी। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ इट, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस स्टूडेंट की मैथ्स पे कमांड अच्छी नहीं है उस स्टूडेंट के लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट ही होगी एनी विच वेज, और जिस स्टूडेंट की मैथ्स पे कमांड अच्छी है तो वो कह रहे हैं कि मैम मैथ्स बहुत अच्छी थी। सो वील बी गेटिंग एन एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इट वंस वील बी गेटिंग द क्वेश्चन पेपर इन आवर हैंड, बट टिल नाउ मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात को सुनकर और समझकर हम ये ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट तो था, ठीक है। सो दे वर 8 to 9 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस थे, 8 to 9 क्वेश्चंस। सो वैसा ही इस बार भी रहा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था इस बार भी, राइट। लॉजिकल रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे, हमेशा ही लॉजिकल रीजनिंग को इस पेपर में एक अच्छी वेटेज दी जाती है और इस बार भी अच्छी वेटेज थी। 10 to 12 क्वेश्चंस का एक ब्रैकेट लॉजिकल रीजनिंग को दिया हुआ था। क्वेश्चंस इजी थे, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, बट हाँ यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि लम सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट मैम पेपर वाज इजी, पेपर वाज इवन लाइक इजी टू मॉडरेट, उससे ज़्यादा ऊपर का लेवल पेपर का नहीं था। बट नाउ स्टूडेंट्स आर बिट वरिड अबाउट द कट ऑफ, सो ऑफ कोर्स नाउ दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ अ वरीसम सिचुएशन फॉर एवरीवन, क्योंकि पेपर इजी आ गया है, अब पेपर हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो अब क्वेश्चन तो यहीं आगे खड़ा होता है कि मैम अब कट ऑफ, चलिए उस पर भी बात करेंगे, अभी हम आगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉपरली। सो लेट अस सी अबाउट इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। सो या वंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम इंग्लिश वॉज वे ईजी, राइट, इंग्लिश वॉज एक्चुअली ईजी। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमारे पास इंग्लिश से आई ना, दे वॉज फॉर सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन से काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चंस थे। हमने एक्सपेक्ट किया था कि वोकैबुलरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एज यूजुअल जैसा आता है। आरसी वाज नॉट देयर, तो इसलिए स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो टाइम टेकिंग तो पेपर नहीं था। ऐसा कोई भी स्टूडेंट फीडबैक लेकर के नहीं आया कि मैम पेपर लेंदी था, नहीं हो पाया, तो ऐसा फीडबैक नहीं आया। तो टाइम टेकिंग पेपर नहीं था, पेपर बिल्कुल अप टू द मार्क, बिल्कुल प्रॉपर टाइम के हिसाब से ही खत्म होने वाला था। कुछ स्टूडेंट्स का ये ज़रूर फीडबैक आया है कि मैम हमारे सेंटर पे कंप्यूटर्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जिसका ज़रूर हमारे
हमारी मतलब एनटीए को ध्यान रखना चाहिए कि ये सब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ना हो, राइट। सो स्टूडेंट्स ने ये बोला कि मैम हमारा कंप्यूटर सिस्टम वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बार बार शट डाउन हो रहा था और इसकी वजह से मेरा पेपर बहुत डिले हुआ। बट एनी विच वेज आफ्टर दैट, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन में हम बच्चे को पूरा टाइम भी दे दें तो एक मोराल डाउन हो जाता है, जो कहीं ना कहीं उस बच्चे के एग्जाम के मार्क्स को अफेक्ट कर सकता है। सो दिस इज़ अ पॉइंट विच ऑफ कोर्स द अथॉरिटीज़ शुड टेक इन टू द कंसिडरेशन। एल्स अगर इस सेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स वर वे हैप्पी, पेपर बहुत ईजी था ये इस पार्ट का, और सेंटेंस करेक्शन को लेकर के मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स को लेकर के आप लोग भी सुनकर के बहुत हैरान होंगे। स्टूडेंट्स का पॉइंट ये था कि मैम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर वो फुल फॉर्म्स से थे, और फुल फॉर्म्स भी मैम बहुत डिफिकल्ट फुल फॉर्म्स नहीं थी, फुल फॉर्म्स भी रैम रोम से रिलेटेड फुल फॉर्म्स थी, बिल्कुल टू द मार्क, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे विच वर वेरी ईजी। सो इसका मतलब हमारे पास ये एक सेटअप हमारे माइंड में आता है कि ये सेक्शन भी हमारा काफ़ी ईजी था, राइट। नाउ मूविंग अहेड, जीके सेक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीके सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, करंट अफेयर्स होता है और दूसरा स्टैटिक होता है, ठीक है। तो हमेशा हमें दोनों चीज़ें तो नहीं मिल सकती इक्विवेलेंट लेवल पर, तो कभी सीए ज़्यादा हाइप में होता है तो कभी स्टैटिक ज़्यादा हाइप में होता है। इस बार स्टैटिक ने ये गेम जीत ली, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग देख पा रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन से आए थे, ठीक है। और हिस्ट्री सेक्शन के अलावा अगर हम लोग सीए को देखें, जहाँ से सीए से थोड़े बहुत भी अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस जो आए ना देवर फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, जो बेसिक जनरल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उन रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे कि 51st CJI। सो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें बच्चों के थ्रू पता चले हैं। हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, सो पॉलिटिकल साइंस से थोड़े से क्वेश्चंस थे। सो येस ऑफ कोर्स दैट वाज इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि हम लोगों के जो मैराथन्स हुए थे उन मैराथन्स में जो क्वेश्चन हमने कराए बिल्कुल उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। सो अगेन ऑफ कोर्स दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। एंड जीके से ये पार्ट से यही क्वेश्चंस हमारे पास थे। स्टूडेंट्स का कहना ये है दैट इट वाज आल्सो मॉडरेट, राइट, इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे तो हमें बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं लगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं हमारे पास, अगर हम उन सेक्शंस को देखें, सो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है, मैथ सेक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स का कहना है मैम क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस से आए थे, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चंस थे, परसेंटेज से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, बट ये मैम मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि मैम जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था लेवल उससे थोड़ा सा अप था, ठीक है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछे गए थे बट ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए थे, जिसकी वजह से हमें ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट लगा, राइट। एनी विच वेज प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स की इन सभी टॉपिक्स को लेकर के थी, इससे कई ज़्यादा टॉपिक्स को लेकर के थी, बट उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को भी लेकर के आया था विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो एनी हाउ लेट अस सी। आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो रीजनिंग को लेकर के बच्चे बहुत हैप्पी हैं। दे आर सेइंग मैम बहुत ही मॉडरेट सेक्शन था ये वाला, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो यहाँ पर आए थे वो क्लॉक से थे, कैलेंडर से थे, ठीक है, सिलॉग से थे, एंड इसके अलावा अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का एक क्वेश्चन था। सो दे आर लाइक कि ठीक है, यहाँ पे हमने जो जो प्रिपेयर किया था उससे सारे ही क्वेश्चंस आए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स की गाड़ी आकर के अटकी है वो अटकी है जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन पर। सो लेट अस सी, हम एग्ज़ाम जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो क्वेश्चन पेपर हाथ में लेने के बाद हम ये देख पाएंगे कि वो स्टूडेंट्स के फोबिया की वजह से है या फिर एक्चुअली में पेपर टफ आया था। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट एवरी सिंगल सेक्शन, अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए बच्चों की क्यूरोसिटी के बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर स्टूडेंट्स दे आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो टू हैव अ डिस्कशन फॉर द सेम, राइट। सो आई नो ऑल ऑफ यू वर वेटिंग फॉर दिस स्लाइड, आई नो ऑल ऑफ यू वर कीनली सिटिंग कि ये स्लाइड कब आएगी और कट ऑफ के बारे में कैसे कब डिस्कशन होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक पॉइंट। हम लोग लास्ट ईयर CLC की कट ऑफ देख पा रहे हैं 205, ठीक है। जितना एनालिसिस अभी तक हो पाया है
जो एक श्योर एनालिसिस नहीं है, बट जो एक लमसम चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस है, ऑफ कोर्स कट ऑफ इतनी तो जाएगी ही जाएगी फॉर श्योर। आप इस कट ऑफ को एक्सपेक्ट करें। कट ऑफ इसे क्रॉस ही कर सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। सो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहें, ठीक है। आप लोग वेट करें, जल्दी से जल्दी आप लोगों के हाथ में एक श्योरिटी आए जिसके बेसिस पे आप लोग अपने आंसर्स को रिमाइंड कर पाएँ, आप लोग देख पाएँ कि आप लोगों ने अल्टीमेटली क्या अटेम्प्ट किया है। बट अगर हम लोग बात करते हैं कि 205 मार्क्स की 205 जो कट ऑफ गई है फर्स्ट लिस्ट में, तो ये कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, इससे क्रॉस ही हो सकती है कट ऑफ, इससे नीचे आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। आई विश ऑल द व्यूअर्स हु आर राइट नाउ वॉचिंग दिस वीडियो, वो कोई भी डरा नहीं है इस बात को सुनकर। आई विश आप सब लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मैम हमारे तो इतने आ ही जाएंगे, राइट। बट एनी विच वेज, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके माइंड में एक डाउट आ गया है कि नहीं, मतलब मैं तो कहीं ना कहीं पीछे ही छूट जाऊंगा, या शायद मैं इस लेन में फॉल ही नहीं करता हूँ, या शायद ये जितने मार्क्स मुझे दिख रहे हैं इनमें मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, सो एनी विच वेज आपको ज़रा सा भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग कम्स विद अ सेकेंड चांस। अगर आपको बाई चांस ऐसा लगता है कि मैम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा मेरा, आई एम वेरी श्योर लुकिंग एट दीज कट ऑफ मार्क्स, तो आप लोग अभी भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र का एग्ज़ाम अभी आ रहा है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ने एनएल सैट के लिए फॉर्म फिल किया है, आप लोग एनएल सैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम इज़ ऑन द वे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, भारतीय विद्यापीठ इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन। सो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड इट पर्सनली टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग वहाँ पर एक बार ट्राई दे सकते हैं। डिमोरलाइज होने की, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोगों को इस एनालिसिस से कुछ इन्फो मिली होगी, कुछ insights मिले होंगे, and of course we are also waiting for the final question paper to be in our hands so that very quickly we can come up with another video and we can reveal all the wonderful points जो शायद आज मिस हो गए हैं, right? So till then you stay tuned to our channel and keep watching. Thank you.